our earlier topic, the topic which we have started, that is the definite integral. We have started the topic of definite integrals together with improper integrals. Now let us continue with the same topic of definite integral. But this topic is related to find out the surface area and the volumes of the solids. This is our work today. We have to find out the surface area and we have to find out the volumes of the solid. Solid is just like, suppose we have a sphere and we have a conic figure and we have a cylinder. These are the solid figures we may have, and we have to find out the surfaces or area, volumes or surface area of these solids of revolution. Now, later to this, let us find out the first question. Yet we have to find out the volume of the ellipse. This is the equation of ellipse we all know. You all know about this ellipse. This is standard equation of ellipse. We can plot the ellipse like this figure. So this is the ellipse with the semi-major axis small a and semi-minor axis small b. This is horizontal axis x, this is vertical axis y, and this is origin point O. You can name this point as A, then this point should be A dash because it is on negative side. And if this point is capital B, then this can be named as B dash. So this is the figure of ellipse we have, and you have to find out the volume of the solid. And for finding out the volume, you can find out the volume by revolving the ellipse either about x-axis. This ellipse can be revolved about x-axis or about y-axis. It can make a revolution. Revolution मतलब ये घूम सकती है, x-axis के अराउंड घूम सकती है और y-axis के अराउंड घूम सकती है. तो हम दोनों वे से वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो आपने एक वे लगाना है, बिकॉज हमें तो सिर्फ वॉल्यूम चाहिए. अगर हम दोनों वे से करेंगे, चाहे हम एक्स एक्सिस से रिवॉल्व करें चाहे वाई एक्सिस से रिवॉल्व करें, तो हम लोग उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी सेम आएगा. अब जैसे सपोज वी हैव टू रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस. रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. दिस इज द फॉर्मूला. If we revolve about x-axis, अगर हम x-axis के अराउंड रिवॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है. अभी 2 अगर हटा भी दें तो चलेगा. ऐसे सपोज आई रिमूव दिस 2, दिस वन. So if I remove this 2 and then you are revolving the ellipse about x-axis, this is the x-axis. It means you have to find out the upper half volume. ऊपर वाले हाफ का वॉल्यूम फाइंड कर लो और उसको डबल कर दीजिए. ये हम लोग कर सकते हैं. ठीक है ना. डबल क्यों करेंगे? बिकॉज वी कैन फाइंड आउट इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट 0 to a. Why 0 to a? Because on x-axis we have limits a0 and minus a0. These are the points. अगर हम y-axis के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर लिमिट्स y वाले यूज होंगी और फॉर्मूला ये हो जाएगा 0 to b 2 टाइम पाई एक्स स्क्वायर dy. दिस विल बी द फॉर्मूला if we revolve it about y-axis. आप दोनों मेथड ये आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और दोनों से वॉल्यूम का वैल्यू सेम आना चाहिए और सेम आएगा भी. नाउ you can substitute the value of y square from this equation, and the value of y square will be b square into a square minus x square upon a square. You can check this value. This is the value of y square from this equation number 1, equation of the ellipse, and it is clear pi is a constant, can be taken out.
b square over a square is also a constant, can be taken out, and you can integrate this a square minus x square. So that is a square x and x cube upon 3 within the limits 0 to a. Now you can substitute the limits. For upper limit a, it should be a cube minus a cube over 3, and for lower limit 0, it will give you 0. So ultimately this come out to be 3 minus a, 3a cube minus a cube, that is 2a cube. So 4 pi a cube b square upon 3a square. This will be the value left with us. A square will be cancelled with this. So ultimately you will have 4 pi a b square upon 3. So this is the required volume of this ellipse by revolving it about x-axis. So this is the way to find out the volume. और अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वॉल्यूम तो एलिप्स का बदल नहीं सकता ना, क्यों जी? एलिप्स का वॉल्यूम चेंज हो सकता है? एलिप्स तो सेम है, बोलिए। एलिप्स तो सेम है, तो बदलना नहीं चाहिए ना, सेम वैल्यू रहनी चाहिए। हाँ जी सर। चाहे हम एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करें चाहे वाई एक्सिस, तो ये आप घर पर इसको चेक करेंगे और ये सेम वैल्यू आना चाहिए। ओके ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला है जब हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट वाई एक्सिस, और ये फार्मूला है जब हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। यू मस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ दिस पैराबोला y square is equal to 4ax. You know that this is a right-handed parabola. इन सभी 3D फिगर्स को आपको अच्छी तरह से जानना है। ये सब हमने +1 और +2 में पढ़ी हुई हैं। हाँ जी सर, पैराबोला, हाइपर पैराबोला। हाँ, हाइपरबोला, पैराबोला, स्फीयर, कोनिक, सिलेंडर, ये सब आपको पता होने चाहिए। यस सर। दिस इज द पैराबोला, नेम इट एज नंबर 1, and you have to find out the volume of the लिखा हुआ volume of the solid generated by revolving the part of the parabola between the vertex and the latus rectum about the tangent at the vertex. You know that this is the vertex. अब वर्टेक्स के बारे में जिसको पता है वही करेगा ये। So this is the vertex point L dash, and what is this? This is the latus vertex, ये है, this is the latus rectum we have. Yes sir. हाँ, और ये हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। L के ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और L डैश के ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। और ये राइट हैंडेड पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो ये वाली लेंथ a होती है, and this point is a0, and for finding out the y coordinate, so this is x coordinate तो a है। what about y coordinate? y coordinate इस इक्वेशन में भर करके आएगा आपके पास y square is equal to 4a square, so y equal to plus minus 2a। अब प्लस 2a ऊपर आएगा एक्सिस के और नेगेटिव जो 2a है वो नीचे की तरफ आएगा। so these are the points of the लेटस रेक्टम L और L डैश। अब हमने क्लियर सी बात है, ये जो पैराबोला है अबाउट द टेंजेंट रिवॉल्व करना है। अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट कहां पर है? ऊपर, y एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व हो सकता है ये। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोला व्हेन यू रिवॉल्व AL अबाउट y एक्सिस, एंड अबाउट y एक्सिस जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होएगा, you know the formula which we have written earlier, that is 2 times pi x square dy. This is the formula of finding out the volume. Or what is this? This is the integration with respect to y. अगर हम integration with respect to y की बात कर रहे हैं
तो हमारे पास लिमिट्स भी फिर y की होनी चाहिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में. तो लिमिट्स ऑफ y इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, that is 0 to 2a. So you can integrate it, but before integrating you need the value of x square here. So put the value of x square तो है नहीं, x है हमारे पास. From equation number 1, x is y square over 4a whole square. So this is the value we have, and what is this? This is pi, this is 2, and you have to integrate it, and this is y for dy. And what about in the denominator? Denominator is 16a square. So this is pi upon 8a square. You can integrate it, y 5 over 5. You can substitute the limits and get the value, and it comes out to be 8a square into 5 भी बाहर कर लीजिए. This come out to be 2a raised to power 5. So 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 2s are 32 a5 minus 0. लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है, और लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 8 को इसके साथ कैंसिल कर दीजिए. 4 पाई a क्यूब अपॉन 5, ये आता है फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल कौन सा? ये वाला, ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना. हाँ जी सर. दिस इज द इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेफिनेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. और ये इसकी डेफिनेट वैल्यू है. डेफिनेट वैल्यू मीन वॉल्यूम आ गया इसका. ओके सर. ये प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन. वो सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन को आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उसको किस तरफ से रिवॉल्व करना है. एक्स एक्सिस की तरफ से रिवॉल्व करना है या वाई एक्सिस की तरफ से रिवॉल्व करना है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर रिवॉल्विंग द सॉलिड, बिकॉज हमारा फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा. हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होएगा ना सर? ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही होएगा. क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छी तरह से पहले समझिए और फिर आगे बढ़िए. ओके सर. जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस. ये इन्होंने सीधे दे दिया, अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द लूप ऑफ द कर्व. क्योंकि ये कर्व ही ऐसा है, वाई स्क्वायर ए इंटू एक्स ए प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज 3a माइनस एक्स. और इसका जो शेप रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, x axis and y axis, and if they are talking about the loop, then the shape of the curve will be like this. ये लूप इस तरह से बनता है हमारे पास, और लूप बनने का मतलब ऑन एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा. ये मैं अभी बताता हूँ क्यों. एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मीट कर रहा है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. और क्लियर सी बात है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होएगा. क्यों ने? एक्स एक्सिस पर y 0 होता है. ओके है, इस बात को समझ गए आप लोग? यस सर. बड़े अपने स्पीकर ऑन कर लीजिए ना. प्राची, अंजलि, मनीष कहाँ चले गए? यस सर. यस सर. थोड़ा सा क्लास में इन्वॉल्व हुई है ना. तो गाने चल रहे हैं, गाने तो बंद कर लो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. तो ऑन वाई एक्सिस, सॉरी ऑन एक्स एक्सिस y 0 होता है. तो इस इक्वेशन में y 0 पुट करिए, a प्लस एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स. पॉइंट आपके पास कौन से आ गया? एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. This is the point we have. So x come out to be 0 and x come out to be 3a. So clearly this point is meeting y axis, x axis when y equal to 0.
at this point 3a. Okay, so this is Okay, the sir. point we have A3A0. और इस क्वेश्चन में उन्होंने सीधा बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम बाय रिवॉल्विंग इट अबाउट एक्स एक्सिस. सो द वॉल्यूम विल बी द फॉर्मूला पाई वाई स्क्वायर dx, क्योंकि हमने इसको इसके अराउंड रिवॉल्व करना है. सो व्हाट अबाउट लिमिट्स ऑफ एक्स एक्सिस? दिस इज ओरिजिन पॉइंट. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0. सो x के लिमिट्स क्या आ गई? 0 to 3a. So you have to integrate it within the limits 0 to 3a. Yes, sir. Now you substitute the value of y square from this. ये देखो y square की वैल्यू कितनी? This is x square 3a minus x upon x plus a dx. तो हमने सीधी उसकी वैल्यू भर दी. And this becomes a complicated term, but we must try to solve it. And how to solve it? In the numerator it come out to be 3ax square minus x cube over x plus a dx. So सबसे जो बढ़िया मेथड है वो ये है कि हम न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं. So by dividing the numerator with the denominator, so it come out to be minus x cube प्लस 3ax स्क्वायर. ऐसा कभी जूनियर क्लासेस में करा होगा आपने डिवीजन मेथड? हाँ जी सर. तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, ये साइन चेंज हो गया और ये बन गया दिस इज ए एक्स स्क्वायर. साइन चेंज हो गया, ये तो खत्म हो गया. दिस कम आउट टू बी 2ax स्क्वायर. ओके, तो आपने क्या करा? 0 to 3a, ये आपके पास बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर ओवर x प्लस a dx. लेकिन आप फिर दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे अब विद x प्लस a. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2ax. so this become 2ax square plus 2a square x. So it will be cancelled. Okay. Okay sir. Yes sir. Yes ठीक है sir. ना, ये 2ax स्क्वायर है. तो आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करा इसको? 2ax. मल्टीप्लाई इट विद 2ax. ये और तो कुछ दिख नहीं रहा. दिस इज 3ax स्क्वायर पॉजिटिव था, तो ax स्क्वायर उसके नीचे आया, वो साइन चेंज हो गया. यस सर. सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा साइन का गड़बड़ हो गया मेरे से. ये देखिए यहाँ पर दिस वन, यहाँ प्लस है, प्लस a और माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन आना चाहिए. माइनस कैसे? ये बेटे जब माइनस एक्स स्क्वायर ने एक्स को किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस को ए को किया तो माइनस आना चाहिए ना. यस सर. यस सर. वो मेरे से गड़बड़ हो गया. तो 3ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर ये 4ax स्क्वायर बनता है. 4ax स्क्वायर, तो ये नहीं होएगा. अब आप 4ax स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x प्लस a से. तो 4ax से करिए 4ax स्क्वायर and this is plus 4a square x. So this is negative minus 4a square x. So ultimately it come out to be 0 to 3a minus x square. यहाँ पर 4ax minus 4a square x over x plus a dx. एक और टर्म हमारे पास आ गई. अब फिर दोबारा से डिवाइड करो 4a x को. मैं बताता हूँ, जब तक कांस्टेंट ना आ जाए ऊपर, x रिमूव करना है हमने, तब तक हमने डिवाइड करना है. अब देखिए जब आप 4a स्क्वायर से करेंगे 4a स्क्वायर x
प्लस 4a³ साइन चेंज कैंसल। अब आ गया ऊपर कांस्टेंट, अब हमारा काम बन गया यहां तक। सो दिस कम आउट टू बी -x² प्लस 4ax, दिस इज 4a², this should be 4a, ओके माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर। ये देखो यहाँ माइनस साइन हमने छोड़ा था ना, ये तो माइनस ही आना चाहिए, दिस वन, ये माइनस साइन है हमारे पास, तो यही माइनस साइन हमारे पास आ गया 4a², और न्यूमरेटर में हमारे पास ये क्या बन गया है, दिस कम आउट टू बी, एंड जब हमारे पास ये बना तो ये बन गया प्लस 4a³ ओवर x प्लस a। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो नेगेटिव आया, यहाँ प्लस कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, उसने उसको प्लस कर दिया। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, एंड इंटीग्रेट करके देखिए क्या बनता है, x² का इंटीग्रेट होएगा x³ ओवर 3, और इसका इंटीग्रेशन होगा 4ax² ओवर 2, और इसका इंटीग्रेशन होगा 4a²x। और व्हाट अबाउट दिस, ऊपर तो कांस्टेंट है, नीचे क्या है, x प्लस a, तो कांस्टेंट एज इट इज लिख करके log x प्लस a कर सकते हैं। Yes, sir. कर सकते हैं, और लिमिट्स भी भर देंगे 0 to 3a। नाउ यू कैन पुट द लिमिट्स एंड गेट द वैल्यू, दिस इज आवर वर्क। अब आपने लिमिट पुट कर देनी है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. After substituting the limit, you will get the definite value or a definite integral. So this is the way to get the value of the volume. एक और ऐसा ही important question है, they are saying that find the volume of the solid generated by revolving the area included between the curves y² is equal to x³ and x² is equal to y³. So we have to revolve the curves and find out the volume. This is x-axis, this is y-axis. What about the curves? ये जो होती है ना y² is equal to x³, ये हमारे पास कर्व ये वाली होती है, इस तरह से बनती है कर्व ऐसे, और एक्स एक्सिस को मिलाना और ऐसे ही ऐसे कर देना, ये हमें थोड़ा सा अपने माइंड में फिक्स करना पड़ेगा। और x² इज इक्वल टू y³ कुछ इस तरह से बनेगी अबव एक्स एक्सिस, और ये ऐसे। अब ये दोनों कर्व यहाँ पर मीट करेंगी, सो नेम दिस मीटिंग पॉइंट एज ए एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पर मीट कर रही हैं और ए पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एंड व्हाट अबाउट दिस y², ये वाली इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी y⁻³ और इस वैल्यू को इसमें भर दीजिए y⁻³ होल पावर 3। So this is y² minus y⁻৯/2 is equal to 0. Is it okay? Yes, sir. मैंने वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और y² कॉमन निकाल लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ कितना आना चाहिए? Tell me. This should be 5/2. Is it okay? Yes, sir. So y² is equal to 0 and 1 minus y⁵5/2 is equal to 0, and y equal to 0 and y equal to 1⁵2/5। हाँ जी, Yes, sir. y Yes, is sir. equal to 1⁵2/5 कितना होएगा ये? What will be this value? मनीष कहाँ चले गए हैं? Yes, sir. Present, sir. मनीष बोल क्यों नहीं रहे, आज सो गए क्या? No, sir.
आज तो थोड़ा क्वेश्चनिंग वाला राउंड था, तो आज आप थोड़ा सा सुस्त हो गए हो, क्या बात है? यहाँ वैल्यू बताओ कितनी लिखूं? 1 ही होगा सर। हाँ, तो फिर बोलते क्यों नहीं आप? घबरा क्यों रहे हैं? 1 नहीं होएगा ना? यस सर। Yes, sir. देखो ना, 2/5 रूट ऑफ 1 इज ऑल, जितना मर्जी रूट निकाल लो, रूट ही है ना ये। यस सर। This Yes, is sir. called 2/5 root. 2/5 root of 1, that is always 1. So y की वैल्यू आ गई 0 and 1. तो इसको अगर इस इक्वेशन में या इसमें भरो, x की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, यही आना चाहिए ना? जिस मर्जी इक्वेशन में भर लीजिए, अगर y 0 होएगा तो x कितना? 0। जीरो। और अगर y Zero. 1 भरेंगे, अगर y 1 भरेंगे तो x कितना आएगा? 1 ही One. आएगा। 1. तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 0 0 एंड 1 1। ये तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स निकालने का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम निकालना है आपने, एंड योर वॉल्यूम विल बी पाई। नाउ यू जस्ट सी व्हाट वी नीड टू डू। वी हैव 2 कर्व्स and both curves are symmetrical. First curve, the curve 1, this one is symmetrical about x-axis and this curve is symmetrical about y-axis. इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना है ना, एक तरह से रिवॉल्विंग द एरियाज इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स निकालना है। तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx कर देते हैं। This is the way to find out the volume, and clearly the limit of x are 0 to 1. You just see x varies from 0 to 1. और इसी क्वेश्चन को आप ये फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते थे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर dy। उस केस में y से होना था वॉल्यूम। घर पर ये ट्राई कर लीजिएगा मेथड। तो दिस इज 0 to 1। पहली इक्वेशन देखो जरा ध्यान से। From the very first equation, you need to find out the value of y square, and from the second equation, you need to find out the value of y2 square. So what it come out to be? This come out to be x raised to power 4/3 minus x cube dx। ये वाली इक्वेशन से आ गया ना। ये देखिए जरा, y की वैल्यू हमारे पास कितना आया? x रेज टू पावर 2/3। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4/3। 4 नहीं बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। पाई में 2 बार लिख गया, एक पाई रिमूव कर दीजिए। अब आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अगर आप लोग एक्स क्यूब पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, तब भी कोई अंतर नहीं है, लास्ट में आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। और वहां भी हम लास्ट में लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन ओमिट द नेगेटिव साइन। वो कोई इशू नहीं है। ओके, Yes, sir. you can omit the negative sign at last also, no problem. Now you can try the same question by this formula at home. You just see how to integrate it. This come out to be y raised to power 7 by x raised to power 7/3 and 7/3 x4/4 within the limits 0 to 1. So this is a pi and this is a 3/7 and this is a 1/4. I think so. What about this? You just need to take the LCM. जल्दी से मुझे LCM बताइए इसका। 28. 28 आएगा नीचे, ऊपर कितना बन गया? 28. बोलिए। 12 minus 7 12 5 pi आता है। 12 or 12 minus, yes, sir. Yes, sir. 5 5 okay? Yes, sir. 5. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. 5 pi by 28 ये होगा इसका वॉल्यूम। अब इससे भी करना है आपने, अभी चेक कर देते हैं इसी को। लेट अस चेक वेदर द वॉल्यूम इज सेम और नॉट। पाई, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू।
x1 square minus x2 square, and from this equation what is x? X comes out to be y raised to power 2 by 3. So x square is equal to y raised to power 4 by 3. Okay, and from that you can write on y cube as it is. So this should be y raised to power 4 by 3 minus y cube into dy. यही है? Yes, sir. Okay. और y कॉमन है, y raised to power 7 by 3 y raised to power 4 over 4. वैसा ही कुछ बन रहा है विद द लिमिट 0 to 1. सेम ही आंसर आना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. सेम ही Yes, आना sir. चाहिए. That is why you can adopt any of these formulas for finding out the volume of the solids of revolution. So इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस करिएगा आप. Okay. To stop Okay, my sir. class here. Any question you want to ask? सर एक बार रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा आज का. हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करने लगा हूँ. मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करा या नहीं? सर कौन सी चैनल है? No, सर sir. चैनल का नाम बता दीजिए. YouTube चैनल मैं स्क्रीन पर ही खोल रहा हूँ अभी. ये अभी आपको पता चल जाएगा. स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.